ہم جیپ کی اگلی سیٹوں پر بیٹھ گئے تھے۔ ٹیلے، ٹیکریاں اور ان پر کہیں کہیں کھجور اور زیتون کے درخت چڑیلوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ جیپ ریتیلے راستے پر تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس کی بجائے چھوٹی بتیاں روشن تھیں۔ کئی ٹیکریوں اور مٹی کے تودوں کے پہلو سے گزرنے کے بعد ہماری جیپ بوندا باندی والی اندھیری رات میں ایک کھلی جگہ پر آ گئی۔ میرے ساتھی فلسطینی کمانڈوز کو تمام راستے کا علم تھا۔ میں ان کے درمیان بیٹھا تھا۔ دونوں خاموش تھے۔ ان میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ کھلا میدان سا تھا جس کی ایک جانب درختوں کے سیاہ ہیولے ابھرے ہوئے تھے اور دوسری طرف دور بجلی کے کھمبوں کی قطار چلی گئی تھی۔ ان کھمبوں پر ٹیوب لائٹس روشن تھیں۔ جیپ ان کھمبوں کی طرف جا رہی تھی۔ میدان میں کوئی 2-1 میل سفر کرنے کے بعد روشنی والے کھمبے ہمارے دائیں جانب رہ گئے۔ جیپ ایک ڈھلان میں اتری تو دائیں طرف کوارٹروں کی ایک قطار نظر آئی جن کے آنگنوں میں روشنی ہو رہی تھی۔ جیپ کی رفتار ہلکی ہو گئی۔ پھر وہ تھوڑی سی اونچائی چڑھنے کے بعد ایک ایسے کوارٹر کے پیچھے ویران سے اندھیرے باغ میں آ کر رک گئی جہاں کوئی بتی نہیں جل رہی تھی۔ نمبر 2 اور نمبر 3 نے اسلحے کا بکس جیپ میں سے نکالا اور کوارٹر کے عقبی گیراج کے چھوٹے دروازے میں سے گزر کر ہم نسبتاً کھلے کمرے میں آ گئے جہاں 2 پلنگ ساتھ ساتھ بچھے تھے۔ نمبر 3 نے سب سے پہلے بند کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے کھینچ دیے، پھر موم بتی روشن کر کے فرش پر لگا دی۔ میں اس ساری کارروائی کے دوران خاموش تماشائی بنا رہا۔ نمبر 3 نے زبان کھولی، لیڈر، یہاں سے ہمیں اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھنا ہے۔ میں نے ڈیوٹی پر جانے والے گارڈز کے کوارٹروں کے بارے میں پوچھا تو نمبر 2 نے کہا وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے مگر ہم آدھے راستے میں ایک جگہ گھات لگا کر بیٹھیں گے۔ میں خاموشی سے ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ ہم نے ایک پستول، ایک شکاری چاقو اور 3 ہینڈ گرینیڈ اپنی جیبوں میں رکھ لیے۔ قمیض کے اندر سٹین گن بھی چھپا لی۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہم نے کچھ سینڈوچز کھائے، کافی بنا کر پی۔ نمبر 3 نے اپنی کلائی کی گھڑی اتار کر موم بتی کے بالکل سامنے رکھ دی، پھر کان کھجاتے ہوئے عربی میں کہنے لگا، لیڈر، ہم پورے 2:20 پر یہاں سے اپنے ٹارگٹ نمبر 1 کی طرف نکل جائیں گے۔ یہ ٹارگٹ نمبر 1 وہ جگہ تھی جہاں ہمیں گھات لگا کر اسرائیلی میزائل اسٹیشن کے گارڈز کی گاڑی میں انتظار میں بیٹھنا تھا۔ اس وقت رات کے 12 بھی نہیں بجے تھے۔ نمبر 2 کچن میں گیا اور ہمارے لیے گرم تلخ کافی بنا کر لے آیا۔ کہنے لگا، باہر بارش شروع ہو گئی ہے۔ نمبر 3 نے سیاہ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، ان کمبختوں کی موسمی رپورٹ کبھی غلط نہیں ہوتی، کیا بارش موسلا دھار ہو رہی ہے؟ نمبر 2 نے بتایا کہ موسلا دھار بارش نہیں ہو رہی مگر بوندا باندی ہو رہی ہے۔ رات 2 بجے تک ہم کافی پیتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس دوران میں نمبر 2 اور نمبر 3 نے مجھے میزائل اسٹیشن کی اندرونی راہداریوں، گارڈ روم اور گیٹ پر چیک پوسٹ کے بارے میں بریفنگ بھی دی۔ ہمیں گارڈ کی ویگن کو آتے دیکھ کر کیا کرنا ہوگا، نمبر 2 کہاں ہوگا، نمبر 3 کی کیا پوزیشن ہوگی اور میں کہاں سے حملہ کروں گا۔ ان سب باتوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا گیا۔ ایک تفصیل طے کر لی گئی، تھوڑی سی ریہرسل بھی کی گئی۔ میگزین کو بار بار کھول کر دیکھا، سٹین گنوں کے بیرل چیک کیے۔ جب گھڑی نے 2:19 بجائے تو نمبر 3 ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، نمبر 2 نے کہا، میگزین چیک۔ ہم نے ایک بار پھر اپنی سٹین گنوں کو چیک کیا، پستولوں میں سے میگزین نکال کر چیمبرز کو چیک کیا۔ میگزین دوبارہ بھرے اور کوارٹر سے نکل کر باہر آ گئے۔ جیپ کو وہیں چھوڑ دیا گیا اور پیدل ہی بارش میں ایک طرف کو چل دیے۔ بارش اچھی خاصی ہو رہی تھی۔ ایک عجیب موت جیسی ویرانی چاروں طرف چھائی تھی۔ 2 کوارٹروں کی دھیمی روشنیاں بارش کی چلمن میں مزید دھیمی ہو گئی تھی۔ ہم ان کوارٹروں کے مخالف سمت کو جا رہے تھے۔ زمین چونکہ ریتلی تھی اس لیے کیچڑ بالکل نہیں تھا اور چلنے میں دقت نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں اندھیرا تھا۔ ایک ویران راستہ بائیں جانب ٹیکریوں کے قریب سے ہو کر آگے کو چلا جا رہا تھا۔ ہم اسی راستے پر چل رہے تھے۔ سڑک پر آ کر ہم کوئی 2 فرلانگ چلے ہوں گے کہ نمبر 3 نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں سڑک پر سے اترنے کو کہا۔ سڑک کی دوسری جانب اناروں کا باغ تھا جس کی باڑ لکڑی کی بنائی گئی تھی۔ باڑ کے پاس انگوروں کی ایک بیل نے چھت سی ڈال رکھی تھی۔ نمبر 3 نے نمبر 2 کو اشارہ کیا۔ اب میں نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے ہی سے یہاں لکڑی کا ایک کھمبا اکھاڑ کر چھپا رکھا تھا۔ یہ کھمبا ٹیلی فون کا تھا اور اس کے ٹوٹے ہوئے تار لٹک رہے تھے۔ ہم نے مل کر اس کھمبے کو سڑک کے بیچ میں اس طرح ڈال دیا کہ کوئی بھی گاڑی وہاں سے نہیں گزر سکتی تھی۔ اب ایک بات اپنے آپ سمجھ میں آ رہی تھی۔ کچھ پوچھنے یا استفسار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ہمیں اپنی پوزیشن سنبھالنی تھی۔ نمبر 2 سڑک کی دوسری طرف بھاگ کر چلا گیا۔ نمبر 3 مجھ سے 10 گز دور باغ کے کھمبے کی اوٹ میں ہو گیا اور میں نے چند قدم پیچھے ہٹ کر پوزیشن سنبھال لی۔ سٹین گن ہمارے ہاتھوں میں تھی، میگزین لوڈ تھے اور ہماری انگلیاں ٹریگر پر تھیں۔ میں نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی، فاسفورس سے چمکتی ہوئی سوئی 2:45 بجا رہی تھی۔ اچانک دور سے موٹر کے انجن کی آواز ابھری۔ نمبر 3 نے ہد ہد کی آواز نکالی۔ یہی آواز نمبر 2 نے اور پھر میں نے نکالی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم نے ویگن کی آواز سن لی ہے۔ کوئی 5 منٹ کے بعد سڑک پر ہلکی سی روشنی ہوئی اور بارش کی بوندیں گرتی صاف نظر آنے لگیں۔ ویگن چلی آ رہی تھی، روشنی بڑھ رہی تھی۔
सड़क के बीच में पड़ा टेलीफोन का खंबा सड़क पर उस जगह था जहां से सड़क थोड़ा सा बल खा जाती थी, इसलिए ये दूर से नजर नहीं आ सकता था। मैं चौकस हो गया। नंबर 3 और नंबर 2 भी चौकस हो गए। अब वैगन की आवाज साफ सुनाई देने लगी। वैगन सड़क पर चली आ रही थी। फिर वो मेरी आंखों के सामने से हेडलाइट्स की रोशनियों को साथ साथ लिए आगे गुजर गई और उसके पीछे गहरा अंधेरा छा गया। मेरी नजरें उसका ताक़ुब कर रही थीं और स्टेन गन का रुख भी वैगन की तरफ ही था। एकदम ब्रेकें चीख उठी और वैगन गीली सड़क पर घसीटते घसीटते बीच में पड़े खंबे के पास जाकर रुक गई। गाड़ी के रुकते ही मैंने सामने टेकरी की तरफ स्टेन गन का एक ब्रस्ट मारा और उसके साथ ही बिजली की तेजी के साथ झाड़ी से निकला। फिर वैगन के अकबी दरवाजे में से उछलकर अंदर घुस गया और सीटों पर बैठे बौखलाए हुए वर्दी पोश 2 आदमियों को हैंड्स अप करवा दिया। स्टेन गन की तड़ाक तड़ाक से वो बौखला गए थे क्योंकि उस इलाके में फलस्तीनी गोरीलों की जलगार होती ही रहती थी। इस दौरान नंबर 2 और नंबर 3 भी अपना काम कर चुके थे। उन्होंने भी एक एक हवाई फायर मारने के बाद ड्राइवर को सीट पर ही काबू कर लिया। दोनों गार्ड्स और ड्राइवर के मुंह में रुमाल ठूंस कर उनकी सफेद वर्दियां उतार दी गई। उनके हाथ पांव रस्सियों से बांधकर उन्हें सड़क के किनारे वाले अनारों के बाग के अहाते में फेंक दिया गया। वैगन में वापस आते ही हमने उसे सड़क से उतारा। अपने गीले कपड़े उतार कर मिसाइल स्टेशन के गार्ड्स की वर्दियां जेबतन की। पिस्तौल, ग्रेनेड और चाकू जेबों में छुपाकर स्टेन गन ने अपने करीब रख ली और वैगन को लेकर असल टारगेट की तरफ रवाना हो गए। कमांडो नंबर 3 ड्राइवर की सफेद और नीली वर्दी में मलबूस जीप चला रहा था। मैं और नंबर 2 गार्ड्स की सफेद वर्दी में नीली टोपियां ओढ़े वैगन के अंदर अपनी अपनी सीट पर आमने सामने खामोश बैठे थे। नंबर 3 कमांडो ने अपनी अकबी खिड़की खोल रखी थी। उस खिड़की में से मुझे दूर मिसाइल स्टेशन की रोशनियां नजर आने लगी थी। हमने स्टेन गन अपने करीब ही रखी हुई थी। साइनाइड जहर के कैप्सूल और हैंड ग्रेनेड हमारी जेबों में थे। पॉलिएस्टर के मास्कों वाली स्कीम तर्क कर दी गई थी। साइनाइड जहर के सरीउल असर कैप्सूल इसलिए रखे थे कि अगर हमारा मिशन फेल हो जाए तो हम इसराइलियों की कैद में जानलेवा अजियतें सहने की बजाय जहरीले कैप्सूल खाकर खुद को खत्म कर सकें। नंबर 3 ने खिड़की के करीब मुंह लाकर कहा, होशियार, गेट आ रहा है। नंबर 2 पहला गार्ड तुम्हारा शिकार होगा। मैं चुप बैठा रहा। वैगन मिसाइल स्टेशन के खारदार गेट के करीब गार्ड रूम के पास जाकर खड़ी हो गई। नंबर 3 वैगन का असली ड्राइवर नहीं था, वो साफ पहचाना जा सकता था। वैगन के रुकते ही अंधेरे का फायदा उठाते हुए नंबर 3 सीट से उतरकर पीछे की तरफ चला और जरा ऊंची आवाज में बोला, एक गार्ड की तबीयत खराब हो गई है। गार्ड रूम का सार्जेंट हाथ में टॉर्च लिए वैगन की तरफ बढ़ा। नंबर 3 ने ये जुमला उसी के लिए बोला था। उसने वैगन के करीब आकर पूछा, कौन बीमार हो गया है? जेरोम। वो नंबर 3 कमांडो को असली वैगन ड्राइवर जेरोम ही समझ रहा था। नंबर 3 उस वक्त वैगन के अंदर आ गया। मैं और मेरा साथी नंबर 2 अंदर मौजूद थे। मैं सीट पर लेट गया। नंबर 2 ने नायलॉन की मजबूत और बारीक रस्सी अपने हाथ में छुपा ली थी। गार्ड सार्जेंट टॉर्च की रोशनी डालते हुए जूं ही वैगन के अंदर आया, नंबर 2 अकब से चीते की तरह उस पर उछला और उसकी गर्दन में नायलॉन की रस्सी डालकर एक ऐसा जबरदस्त झटका दिया कि इस्राएली सार्जेंट की गर्दन लटक गई। नंबर 3 ने बाहर छलांग लगाते हुए कहा, लाश सीट के नीचे डाल दो। नंबर 3 ने गेट खोल दिया। फिर वैगन पिछली रात के अंधेरे में मिसाइल स्टेशन के अंदर दाखिल हो गई। मेरा दिल धड़क रहा था। इतनी अहम एटमी पोस्ट पर कब्जा करना कोई मामूली बात नहीं थी। आगे मिसाइल स्टेशन का दूसरा गेट था। हमने अपने अपने पिस्तौलों पर साइलेंसर चढ़ा लिए। यहाँ एक इस्राएली संतरी छोटी शॉटगन लिए पहरा दे रहा था। वैगन नंबर 3 ने गेट के बाहर खड़ी कर दी। ये दरवाजा कंक्रीट के सुतूनों को जोड़कर बनाया गया था जो बंद था। उसके ऊपर खारदार तार लगी थी। इस्राएली संतरी गेट के अंदर पोर्च में खड़ा था। वो वैगन को देखकर दीवार के साथ लगे माइक्रोफोन के पास गया और इस्राएली जबान में बोला, आज का पासवर्ड। इस अरसे में नंबर 3 कमांडो भी गेट के खंबे के पास जा चुका था। उसने उधर वाले छोटे माइक पर कहा, ज़ीब्रा फ्लाइट। इस्राएली संतरी ने बटन दबा दिया। गेट आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। यहाँ दाखिल होने के लिए हर रोज पासवर्ड तब्दील कर दिया जाता था। इन कमांडोज ने आज का पासवर्ड मालूम कर रखा था। हमारी वैगन दूसरे गेट में भी दाखिल हो गई। बारिश की बौछार वैगन की छत पर गिर रही थी। अब सामने शेड था जहाँ पहले ही से कुछ गाड़ियां और वैगनें खड़ी थी। नंबर 3 ने अपनी वैगन भी एक तरफ खड़ी कर दी और उतर कर बोला, लीडर, तुम जानते हो कि सामने वाला दरवाजा लॉकर रूम वाली राहदारी को जाता है। वहाँ हर कदम पर पहरा है। मैं दूसरी राहदारी से अटैक करूंगा। नंबर 2, तुम मेरे पीछे रहकर मुझे प्रोटेक्ट करोगे। स्टेन गन ने हमने कमीज के अंदर करके पतलून में उड़स ली थी। साइलेंसर वाले पिस्तौल हमारे हाथों में थे। नंबर 3 बिजली की तरह एक तरफ को हो गया। नंबर 2 भी उसके पीछे निकलकर अंधेरे में गुम हो गया। मेरे सामने मिसाइल स्टेशन की 2 मंजिला इमारत खड़ी थी जिसमें कहीं कहीं धीमी रोशनी हो रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस बेजबान और सीधी सादी इमारत के अंदर तहखाने में 4 ऐसे हलाकत खेज एटमी मिसाइल नस्ब हैं जो दुनिया की 1/4 आबादी को नीस्तो नाबूद कर सकते हैं। बारिश उसी तरह हो रही थी।
नक्शे के मुताबिक मुझे मालूम था कि अब क्या करना है। नंबर 2 और नंबर 3 के जाते ही मैं पार्किंग शेड से निकलकर बारिश में तेज तेज चलता इमारत के ड्यूटी रूम की तरफ बढ़ा। ड्यूटी रूम में से एक भारी भरकम इस्राएली ऑफिसर बाहर निकला और इब्रानी जबान में उसने सवाल किया कि मेरा साथी यानी दूसरा गार्ड कहाँ है। मेरी चालाक नजरों ने चारों तरफ देख लिया था कि आसपास कोई नहीं है, मगर मैं उस इस्राएली ऑफिसर को ड्यूटी रूम के अंदर ले जाना चाहता था। ये खतरा मौजूद था कि वो मुझे पहचान लेगा कि मैं असल गार्ड नहीं हूँ। ड्यूटी रूम के बाहर एक धीमा सा बल्ब रोशन था। मैंने पिस्तौल जेब में रख लिया था। अपनी टोपी से बारिश का पानी झाड़ता और ये कहता हुआ कि मेरा साथी बीमार हो गया है, ड्यूटी रूम में घुस गया। ऑफिसर मेरे पीछे आया। तुम उधर कहाँ जा रहे हो? अपना आईडी कार्ड दिखाओ। ये उसका रोज का मामूल था। आईडी यानी शनाख्ती कार्ड दिखाए बगैर कोई भी ऑफिसर उस इमारत में दाखिल नहीं हो सकता था। ड्यूटी रूम में रोशनी थी। अंदर आते ही इस्राएली ऑफिसर ने अपने सामने एक अजनबी को देखा तो अलार्म के बटन की तरफ हाथ बढ़ाया। ऐन उस लम्हे मेरे साइलेंसर वाले पिस्तौल में से ठक की आवाज बुलंद हुई और शीशे की गोली भारी भरकम इस्राएली के दिल में पैवस्त हो गई। वो मुंह के बल आगे को गिरा। मैं छलांग लगाकर ड्यूटी रूम में से बाहर निकल आया। दीवार के बटन को दबाया। सामने लोहे की सलाखों वाला दरवाजा एक तरफ को खिसक गया। अब मेरी मंजिल लॉकर रूम के बाहर पहरे पर मुतय्यन वो संतरी था जो लॉकर रूम में मिसाइलों के कंप्यूटर के सामने बैठे आदमी पर नजर जमाए रखता है। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ राहदारी में से गुजर गया। एक तरफ से 2 संतरी अचानक निकल कर मेरे सामने आ गए। मैंने मुस्कुराकर उन्हें इब्रानी जबान में सुबह बखैर कहा और ऐसे निकल गया जैसे मुझे ड्यूटी पर जाने की जल्दी हो। सिपाहियों ने मुझे न पहचाना। आगे फिर लोहे की सलाखों वाली दीवार आ गई। यहाँ भी एक गार्ड स्टेन गन लिए खड़ा था। मुझे अपनी तरफ आते देखकर उसने स्टेन गन तान ली, क्योंकि उस तरफ जाने की किसी गार्ड को इजाजत नहीं थी। हॉल्ट। मैं वहीं रुक गया। पिस्तौल मेरी जेब में था। मेरा एक हाथ भी उसी जेब में था। इससे पहले कि मैं इंतहाई सुर्रत के साथ जेब में से पिस्तौल निकाल कर फायर कर दूं, दूसरी जानिब से मुझे ठक की आवाज सुनाई दी और संतरी गार्ड कटे हुए दरख्त की तरह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। उसके गिरने से आवाज पैदा हुई तो मैंने एक संतरी को बाएं जानिब से उधर भाग कर आते देखा। उसने शायद संतरी को गिरते देख लिया था। मैंने पिस्तौल निकाल कर उस पर फायर कर दिया। निशाना खता गया, मगर पीछे से नंबर 2 की शक्ल नजर आई। वो कोई छल्लावा था कि अपनी जगह से उछला और फिर भागकर मेरी तरफ आते संतरी के ऊपर गिरा और उसकी नायलॉन की रस्सी ने संतरी की गर्दन को अपने शिकंजे में ले लिया। नंबर 3 दाएं जानिब से भागता हुआ आया और मेरे करीब से गुजर कर बोला, लॉकर रूम। लॉकर रूम लीडर। कमांडो नंबर 3 ने खुफिया बटन दबाया। दूसरे जंगले की दीवार भी ऊपर उठ गई। सामने चंद कदमों के फासले पर लॉकर रूम था, जिसकी दाहिनी जानिब हमें एक संतरी का कंधा नजर आ रहा था। वो हाथ में शॉटगन लिए अंदर मिसाइल के कंप्यूटर के सामने बैठे गार्ड को तक रहा था। नंबर 3 ने इशारा किया। हम तेजी से एक तरफ हटकर आगे बढ़ने लगे। संतरी ने आहट सुनकर पीछे देखा ही था कि नंबर 3 उसके सर पर जा पहुंचा। उसने साइलेंसर वाला पिस्तौल उसके सर के करीब ले जाकर फायर कर दिया। संतरी गार्ड की खोपड़ी में सुराख करती हुई गोली दीवार से जा टकराई। अंदर बैठे गार्ड ने अलार्म का बटन दबा दिया। हर तरफ से खतरे के अलार्म बज उठे। नंबर 3 ने चिल्लाकर कहा, अटैक। 3 सेकंड के अंदर अंदर हमने कंक्रीट की दीवार वाले दरवाजे को हैंड ग्रेनेड से उड़ा दिया और अंदर जाते ही दूसरे गार्ड को काबू कर लिया। वो बौखलाकर हमारे चेहरों को तकने लगा। नंबर 2 ने चीख कर कहा, इसे मार डालो नंबर 3। और नंबर 3 का खंजर उस आखिरी गार्ड के सीने में उतर गया। उसने कंप्यूटर की तारों को स्विचों से खींचकर बाहर फेंका और हमें पीछे आने का इशारा किया। कोने में एक लिफ्ट नीचे मिसाइलों के लॉकर रूम की तरफ जाती थी। हमें राहदारियों में फौजी बूटों की आवाजें सुनाई दी। फायरिंग भी शुरू हो गई थी। गोलियों की एक बाढ़ हमारे ऊपर दीवार पर लगी और सीमेंट की किरचें उड़ी। लिफ्ट ऊपर आ चुकी थी। हम उसमें घुस गए। दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट नीचे उतरने लगी। नीचे असली लॉकर रूम था, जिसके दरवाजे की सलाखों के पीछे एक संतरी पहले ही से स्टेन गन ताने खड़ा था। नंबर 3 ने सरगोशी की, लीडर तुम इसे वाइंड अप करोगे। हम एकदम से फर्श पर औंधे लेट गए। संतरी ने फायरिंग शुरू कर दी। नंबर 2 के हलक से हल्की सी चीख की आवाज निकली। मैंने दूसरी बाढ़ मारी तो इस्राएली गार्ड लड़खड़ा कर फर्श पर गिर पड़ा। नंबर 3 और मैं मिसाइल रूम की तरफ दौड़े। नंबर 3 ने कोड हिंसों की मदद से दरवाजे का लॉक खोला और दरवाजा अपने आप एक तरफ को खिसक गया। हम दोनों भागकर मिसाइल रूम में दाखिल हो गए। नंबर 3 जाते ही मिसाइलों के पैनल पर बैठ गया और उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसने यके बाद दीगरे 3 बटन ऑफ कर दिए और एक जगह से कंप्यूटर का प्लग बाहर खींच लिया। अब हमें एहसास हुआ कि नंबर 2 हमारे साथ नहीं है। नंबर 2 पीछे रह गया है, लीडर। मैंने देखा कि नंबर 2 मिसाइल रूम के बाहर फर्श पर जख्मी हालत में पड़ा था। उसके सीने से खून उबल रहा था। शॉटगन की बाढ़ की कुछ गोलियां उसके सीने में लगी थीं। लिफ्ट एक बार ऊपर जाकर नीचे आई तो उसमें इस्राएली फौजी सवार थे। नंबर 3 ने उन पर गोलियां चला दी। मैंने नंबर 3 से कहा, मैं नंबर 2 को घसीट कर लाता हूँ। नंबर 3 बोला, इसकी जरूरत नहीं रही अब।
उसके साथ ही उसने मुझे आवाज दी, लीडर पैनल पर आ जाओ। ये कहकर वो पैनल पर से उठा, तेजी से दीवार के साथ लगे एक सफेद बक्स की तरफ भागा। बक्स खोलकर एक हत्थी को नीचे गिरा दिया। उसके साथ ही लोहे की सलाखों वाले दरवाजे के आगे ऊपर से फौलाद का एक भारी दरवाजा नीचे गिर पड़ा। अब हम लिफ्ट में घात लगाकर बैठे इस्राएली सिपाहियों की फायरिंग से महफूज हो गए थे। नंबर 3 के हाथ बड़े माहिर साइंसदान की तरह काम कर रहे थे। उसने 3-4 जगहों से तार बाहर खींच लिए। एक जगह नीली बत्ती जल रही थी। उस बत्ती के नीचे एक छोटा सा लीवर लगा था। कमांडो नंबर 3 ने दोनों हाथों से लीवर को पकड़कर एक झटके से बाहर खींचकर फर्श पर फेंक दिया और गहरा सांस भरकर बोला, लीडर, ये बहुत बड़ा मरहला था। मैं उसके करीब चला गया। ये लीवर एंटी मिसाइल का था क्या? नंबर 3 ने कहा, इस लीवर को अगर मैं खींचकर बाहर ना निकालता तो यहाँ से छोड़े हुए मिसाइलों को इस्राएली रॉकेट डिवीजन के साइंसदान रास्ते में ही तबाह कर सकते थे, जिसका मतलब ये था कि हमारी धमकी का उन पर कोई असर नहीं हो सकता था। अगर हम ये धमकी देते हैं कि हम 4 मिसाइल मिस्र और शाम के शहरों पर फायर कर देंगे तो वो बड़ी आसानी से उन्हें रास्ते में ही तबाह कर सकते थे, मगर इस लीवर के बाहर निकाल देने से अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। एंटी मिसाइल यूनिट के कीबोर्ड से अब इन मिसाइलों का राब्ता खत्म हो गया है। अब ये मिसाइल अगर हम मिस्र या शाम की तरफ छोड़ते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। मैंने फौलादी दीवार वाले दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। हम फौलादी 4 दीवारी में बंद होकर महफूज हो गए थे। नंबर 3 पैनल पर आकर बैठ गया। यहाँ 22 इंच के 4 कंप्यूटर लगे थे। पैनल पर कई एक बटन लगे थे और छोटे छोटे बेशुमार बल्ब रोशन थे। नंबर 3 ने एक सुर्ख बटन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस बटन को दबाने से रॉकेट नंबर 1 की मदद से मशरिक़ वस्ता के किसी भी शहर की तरफ फायर किया जा सकता है। उसके साथ ही नीला, जर्द और पिंक बटन है। ये दूसरे 3 एटमी मिसाइलों के बटन हैं। करीब ही सुर्ख रंग का टेलीफोन रखा था। नंबर 3 ने कहा, इस टेलीफोन का डायरेक्ट लिंक इस्राएली वजीर आजम के साथ है। हमले की सूरत में वो इसी टेलीफोन के जरिए मिसाइल फायर करने का हुक्म देगा। फिर उसने दूसरे स्याह रंग के छोटे फोन के 3 नंबर घुमाए और मुझे आंखों से बैठ जाने का इशारा किया। मैं उसके करीब ही स्टूल पर बैठ गया। मुझे नंबर 2 की मौत का बड़ा अफसोस था। अगरचे कमांडो कभी किसी की मौत का गम नहीं करता, मगर ये मौत इस कदर अचानक हो गई थी कि मुझे अभी तक उसका यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी बात यह भी थी कि हमें अभी अपने साथी की बहुत जरूरत थी, मगर नंबर 3 ने एक बार भी अपने साथी की मौत का जिक्र न किया। वो एक सही कमांडो था। वो फोन पर बोला, हेलो, मैं नंबर 3 हूँ। मेरा लीडर मेरे पास है। हमने तुम्हारे एटमी मिसाइलों पर न सिर्फ कब्जा कर लिया है, बल्कि उनको जब और जिस वक्त चाहें फायर कर सकते हैं। तुम फौरन कमांडो ऑफिसर से मेरी बात करवाओ। दूसरी तरफ न जाने क्या अफरा तफरी मची हुई थी। किसी ने कुछ कहा तो नंबर 3 ने चिल्लाकर कहा, बकवास बंद करो और कमांड ऑफिसर से बात करवाओ, नहीं तो मैं मिसाइल फायर करके तीसरी एटमी जंग छेड़ दूंगा। कमांडो नंबर 3 के पतले होंठ भींचे हुए थे। उसने रिसीवर रख दिया और बोला, कमांडिंग ऑफिसर के लिए ये उसकी जिंदगी की सबसे भयानक इत्तला होगी। नंबर 3 ने मिसाइल की दराज को खोल दिया। उसमें से एक जर्द रंग की जिल्द वाली कॉपी निकाली और उसे खोलकर पढ़ने लगा। उस पर कोड वर्ड्स लिखे थे। वो ज़ेर-ए-लब मुस्कुराया, इनके ये सारे कोड अब बेकार हो गए हैं। देखो लीडर, इस सुर्ख बटन पर जरा सा दबाव पड़ेगा और एक एटमी मिसाइल काहिरा की तरफ रवाना हो जाएगा। मैंने कहा, क्या वो इस सिस्टम को जाम नहीं कर सकते? नंबर 3 मुस्कुराया, इस मिसाइल रूम को बाहर से पावर सप्लाई नहीं होती। मैं तुम्हें नीचे चलकर दिखाऊंगा। इसके अपने एटमी जनरेटर काम कर रहे हैं, जिनका बाहर की पावर लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त हम पूरी तरह से खुद मुख्तार और खुदकार हैं। टेलीफोन की घंटी बज उठी। नंबर 3 ने जल्दी से रिसीवर उठाया और पूछा, क्या तुम कमांडिंग ऑफिसर हो? दूसरी तरफ से हल्की सी आवाज मुझे सुनाई दी। नंबर 3 ने कहा, ओके मिस्टर कमांडिंग ऑफिसर, मैंने और मेरे साथी कमांडो ने तुम्हारे इस एटमी मिसाइल पोस्ट पर कब्जा करके 4 मिसाइलों को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया है। अपने वजीर आजम से कह दो कि हम किसी भी वक्त ये एटमी मिसाइल फायर करके यरूशलेम पर कयामत नाजिल कर सकते हैं। जब हमारे मिसाइल शाम, इराक, काहिरा और सिकंदरिया पर गिरेंगे तो उधर से भी जवाबी एटमी मिसाइल फायर कर दिए जाएंगे, जो सफ़े हस्ती से इसराइल के शहरों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। हाँ, मैं बताता हूँ। नंबर 3 ने रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर मुझसे कहा, वो हमसे हमारी डिमांड पूछ रहे हैं। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें अपना मुतालिबा इसराइली वजीर आजम को ही बताना चाहिए। नंबर 3 ने कहा, ठीक है। फिर फोन पर बोला, हम अपनी डिमांड तुम्हारे वजीर आजम को ही बता सकते हैं। अपने वजीर आजम से बात करवाओ। नंबर 3 ने फोन बंद कर दिया। चंद सेकंड के बाद फोन की घंटी फिर बज उठी। इस बार दूसरी तरफ से मिसाइल कंट्रोलर कमांडर बोल रहा था। उसने नंबर 3 के साथ बड़ी हलीमी से बात की और कहा कि हमें मुज़ाकरात करने का मौका दो। अपनी डिमांड्स हमसे कहो।
तुम्हें जितनी रकम चाहिए हम तुम्हें मुहैया कर देंगे। इस पर नंबर 3 ने गाली देकर उसे कहा, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, अपने वजीर आजम से बात नहीं करवाओगे तो मैं पहला एटमी मिसाइल फायर कर दूंगा। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, ठीक है, ऐसा मत करना, मैं वजीर आजम से बात करवाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि कुछ देर लग जाए, तुम इंतजार करना, मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ। नंबर 3 रिसीवर रखकर मुस्कुरा दिया। उस वक्त तेल अवीव के गवर्नमेंट हाउस में इसराइली वजीर आजम मगरबी जर्मनी के एक वफ्द से जरूरी मुज़ाकरात कर रहा था कि उसका सेक्रेटरी घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया। इसराइली वजीर आजम ने उसकी तरफ देखा तो सेक्रेटरी ने बाएं हाथ की 3 उंगलियां खड़ी कर दी। ये इशारा था इस बात का कि तीसरी आलमी एटमी जंग जैसी प्रॉब्लम दरपेश है। इसराइली वजीर आजम 1 सेकंड के लिए परेशान हो गया। सेक्रेटरी फौरन बाहर निकल गया। वजीर आजम ने जर्मन वफ्द के सरबराह से कहा, माफी चाहता हूँ, बाकी मुज़ाकरात नाश्ते के बाद होंगे, रात तकरीबन गुजर चुकी है, मुझे अब नींद आ रही है। जर्मन वफ्द उठकर चला गया तो वजीर आजम घबरा कर बाहर को लपका। सेक्रेटरी ने उसे एक तरफ ले जाकर तमाम सूरत हाल से आगाह किया। इसराइली वजीर आजम का रंग उड़ गया, उसके होंठों से खुद ब खुद निकल गया वो लोग क्या चाहते हैं। उसके साथ ही वो अपने बेडरूम की तरफ दौड़ा। सेक्रेटरी उसके साथ साथ था। नंबर 3 और मैं मिसाइल पैनल के सामने बैठे फोन की घंटी का इंतजार कर रहे थे। अचानक फोन की घंटी बज उठी। नंबर 3 ने रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं इसराइल का वजीर आजम बोल रहा हूँ, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? नंबर 3 ने कहा, मिस्टर वजीर आजम, मेरे लीडर से बात करो। मैंने रिसीवर हाथ में लिया और कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं कमांडो लीडर बोल रहा हूँ। इस वक्त आपका मिसाइल स्टेशन पूरे तौर पर हमारे कब्जे में है। हमने एंटी मिसाइल राब्ते को भी काट दिया है। हम इस पोजीशन में हैं कि किसी लम्हे भी काहिरा, सिकंदरिया या बगदाद पर एटमी मिसाइल फायर कर सकते हैं और आपका कोई भी रॉकेट हमारे मिसाइल को रास्ते में तबाह नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमने एंटी सिस्टम को तबाह कर दिया है। वजीर आजम की घबराई हुई मगर बज़ाहिर संजीदा आवाज आई, तुम चाहते क्या हो? हम तुम्हारे मुतालिबात पूरा करने की कोशिश करेंगे। तुम्हें कितनी रकम चाहिए? मैंने कहा, हमने ये खतरनाक मिशन रकम हासिल करने के लिए शुरू नहीं किया। वजीर आजम ने तशवीश के साथ पूछा, फिर तुम लोग क्या चाहते हो? अब मैंने इसराइली वजीर आजम को उसकी इब्रानी जबान में सारी बात बयान कर दी और कहा, तुम्हें दिन के 12 बजे तक का वक्त देते हैं। अगर 12 बजे तक तुमने काहिरा में मुकीम पाकिस्तानी सिफारतकार की लड़की को हमारे हवाले न किया तो हम पहला मिसाइल फायर कर देंगे जो सिकंदरिया की बंदरगाह पर जाकर गिरेगा। वजीर आजम के लहजे में अब परेशानी और बेहद फिक्रमंदी थी। उसने कहा, इस तरह तुम सिकंदरिया के हजारों बेगुनाह मुसलमानों को हलाक कर दोगे जो तुम्हारे भाई हैं। मैंने जवाब में कहा, लेकिन उसके साथ ही काहिरा से 2 एटमी मिसाइल तेल अवीव में और यरूशलेम के लिए भी फायर कर दिए जाएंगे जो लाखों यहूदियों को लुक़माए अजल बना देंगे, जिनमें हो सकता है कि तुम भी शामिल हो, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। वजीर आजम ने जल्दी से कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। हम पाकिस्तानी सिफारतकार की बच्ची के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम्हें किसी ने गलत इत्तला दी है। मैंने फौरन कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये वक्त इन फजूल बातों का नहीं है। एटमी मिसाइल का फायरिंग सुर्ख बटन मेरे सामने है, मेरी उंगली उससे सिर्फ 2 इंच के फासले पर है। तुम्हारे लाखों यहूदियों और 2 शहरों की मौत सिर्फ 2 इंच के फासले पर है। बोलो, अब तुम क्या चाहते हो? वजीर आजम ने कहा, जरा ठहरो, मैं पता करता हूँ। मुझे इसराइली वजीर आजम की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। वो माउथ पीस पर हाथ रखकर शायद अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था। फिर बोला, हेलो दोस्त, मुझे 1 दिन की मोहलत दो, मैं पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर लूँ, उसके बाद उसे तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा, मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने वजीर आजम की पेशकश नंबर 3 को बताई तो वो बोला, ये झूठ बोल रहा है, ये वक्त हासिल करना चाहता है ताकि हमारे खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई कर सके। मैंने वजीर आजम से कहा, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर नहीं, हम तुम्हें आज दिन के 12 बजे तक की मोहलत देते हैं। अगर 12 बजे तक तुमने पाकिस्तानी लड़की अपनी अजियत बख्श कैद से निकाल कर हमारे हवाले न की तो हम सिकंदरिया पर एटमी मिसाइल फायर कर देंगे। उसके बाद दमिश्क पर दूसरा रॉकेट भी छोड़ दिया जाएगा, ठीक है? वजीर आजम की मुर्दा सी आवाज आई, ओके, मैं तुमसे 11 बजे राब्ता करूंगा। और मैंने फोन बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।